Now, this was a brief introduction video about our company, and now I would like to hand over the session to our expert. So, Antesh sir, you can start the session now. Thank you very much. Everyone, Thank good you, sir. evening. Good evening, everybody, and welcome all. I'm audible to everyone. Yes, sir. Okay, happy Monday to everyone. Almost we have around 25 people. So, guys, just quickly let me know on the chat how many are fresher out of you all, and how many are working professional. And then slowly, after some question and answers, we will slowly start the demo sessions and we'll discuss about the topics we're gonna discuss during the entire course. All right. What about others? Let us make the sessions interactive, guys. Okay. Cool. So I guess like most of the people joined today on the session are working professional. You all are like, working professionals. And let me also know on the chat box quickly, everyone is comfortable with Hindi, or shall we continue in English only? If anyone is there who have, you know, any sort of problem in understanding the English only. So there are few people who are only comfortable with English. And that's the biggest challenge I faced during the sessions, the language issue. All right. Not a big deal, guys. What we'll be doing, okay, I'll be using both the languages. And basically the thing is like, wherever you find like you're not able to understand the things, or things are not going clear to you, you are open to put your doubts, your queries on the chat box, and I'll be helping you. I'll try to resolve each of your query. अगर किसी को कोई language का issue होता है, okay, that's all enough. Okay, that's good, fine. अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, so just आराम से आप अपना क्वेरी डाल देना in chat and I'll pick it up, and I'll be continue in English. Okay, and wherever I think like I just need to make some more clarification on that topic or something, I'll turn it on Hindi as well. So it's just a demo session, so not an issue, not going to be a big challenge, big issue. Okay. So let us first start like, what are the topics we're going to cover in this course? Okay. And why should you opt this, right? So the course topics which we'll be learning in this entire course, in this entire month, are, this sequence will be discussing about the survey part, right? How to make use of, how to make use of, instruments, right? We'll not be covering the total station because that's not possible in online classes, right? But auto label definitely we'll see like how to work with auto label, कैसे RL लेना है, how to take RLs, how profile leveling किस तरीके से होती है, right? And how you will do different kinds of survey and all. So whatever you have, if you are a fresher, whatever you have learned in your college, or if you are a working professional, you are a site engineer, not a survey professional, but if you are a site engineer or in any other thing, other part in the construction industry, you must should know that part of survey. उतना सर्वे आपको आना चाहिए, वो सारी चीजें हम बेसिक्स क्लियर करेंगे सर्वे में. And then we'll move towards the layout. That's a very important part because when when we jump into the industry, we really miss this part, right? हम किसी भी कंस्ट्रक्शन में अगर प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं तो कई बार हमको स्टार्टिंग से देखने को नहीं मिलता है. So we'll also be covering the layout plan, layout part, like किस तरीके से एक किसी कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होता है तो उसका किस तरीके से साइट लेआउट प्लान होता है, उसके हिसाब से कैसे आपको साइट में लेआउट करवाना है. एंड देन we will have a complete case study on estimation and quantity survey, right? So detail part जो भी हमारा होगा estimation and quantity survey का, okay, एक complete case study लेंगे. I think sound is okay for everyone. Yes, sir. Ashish, I think like there's some issue at your end. Not a problem. And then we'll consider a complete case study on quantity estimation, right? So we'll be doing the complete quantity estimation of project, building project basically, right? उसका complete quantity estimation करेंगे IS code 1200 के हिसाब से, different IS code 1200 के जो भी parts हैं, जो major parts है, right? Because there are 28 29 parts, so we cannot cover each and everything, right? तो जो major part है, जो day to day life में आप use करोगे, है ना,
तो उन पार्ट्स को कवर करेंगे, IS 1200 के मोड ऑफ मेजरमेंट, उसके हिसाब से किस तरीके से आपको एस्टिमेशन करना है, हाउ टू प्रिपेयर BOQ, राइट, हाउ टू प्रिपेयर शॉर्टकट टेम्पलेट्स, जो कि अभी कुछ देर में हम देखने जाएंगे, राइट। ये सारी चीजें हम क्वांटिटी एस्टिमेशन में कवर करेंगे। उसके बाद किस तरीके से रेट एनालिसिस करना है, DAR डॉक्यूमेंट के हिसाब से लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे रेट एनालिसिस होता है, राइट, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द बार बेंडिंग शेड्यूल। तो जो केस स्टडी जैसे हम क्वांटिटी एस्टिमेशन करेंगे, सेम वही केस स्टडी उसी तरीके से हम बार बेंडिंग शेड्यूल में भी कर रहे होंगे BBS में। एंड एट द फाइनल टाइम विल बी लर्निंग अबाउट द बिलिंग्स के बारे में, जो भी बेसिक्स हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ RA बिल्स होते हैं, कैसे RA बिल का प्रिपेयर होता है, SOP सर्टिफिकेट्स ऑफ पेमेंट्स वगैरह किस तरीके से बनती हैं, राइट, हाउ टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन बिल्स एंड ऑल, राइट, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, मोबिलाइजेशन रिकवरी कैसे होती है, हाउ टू डू ऑल दीज कैलकुलेशंस, जो बिलिंग इंजीनियर का मेजर पार्ट है, वो चीजें भी हम कवर कर रहे होंगे, विल बी कवरिंग दोस पार्ट एज वेल, राइट। सो दीज आर लाइक हाई लेवल topics written out here which we'll be covering into the course. And if you just want to get the complete detail about the course, you can contact to the Proteni and they'll be providing you the detailed syllabus of the course as well. Okay. Now let us discuss one by one topics, and we'll at the end we'll be taking some short sessions, or we'll be covering some short topics. Okay. So before moving, let us see like what we'll be doing in survey. Okay. All right. So for the survey, we'll be discussing like what are the different types of survey, right? And what are the different instruments which we are using for the survey, right? Auto label, किस तरीके से उसकी रीडिंग्स लेनी है, किस तरीके से स्टाफ रीडिंग लेनी है, right? And then how to take RLs, okay? ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और उसके बाद जो इस सबको सीखने के बाद जो रियल एप्लीकेशन होता है, what you gonna do when you are at the field, right? Then how to take RLs, कैसे करेक्शन अप्लाई करना है, राइट, प्रोफाइल लेवलिंग किस तरीके से करनी है, राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आपने सीखे हैं। इस तरीके से अगर किसी जगह की प्रोफाइल लेवलिंग करनी है, कैसे करेंगे, प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है, राइट। जब आप अगर किसी हाईवे या किसी ड्रेन का काम करते हो तो इस तरीके से आप बनाते हो, राइट, एग्जिस्टिंग सरफेस जो भी होता है, एग्जिस्टिंग जो RLs होते हैं वो, और फिर जो आपको फॉर्मेशन लेवल चाहिए होता है, किस तरीके से उसकी सर्वे करके कहाँ से ये सारी चीजें आती हैं, राइट। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंटूर, किस तरीके से कंटूर मैपिंग की जा सकती है, राइट, कैसे होती है सारी चीजें। सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ सर्वे विच each and every civil engineer must should know, right? At least when you are when you are in a field, you must should know how to operate an auto label machine, right? Not necessary कि आपको बहुत ज्यादा टोटल स्टेशन के बारे में पता हो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज की ऑटो लेबल मशीन किस तरीके से चलानी है। तो ये पार्ट है जो हम कवर कर रहे होंगे सर्वे में। उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स द लेआउट, राइट, कि लेआउट किस तरीके से करना है आपको, सेंटर लाइन लेआउट, राइट, डिफरेंट देखेंगे अलग अलग सिनेरियो में किस तरीके से आपको लेआउट करना है, परफॉर्म करना है। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, राइट। इफ यू डोंट हैव एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ आपको मेजरमेंट टेप दे दिया जाए, है ना, और आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, राइट, गुनिया उनिया कुछ भी नहीं है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस सिचुएशन में कैसे आप लेआउट परफॉर्म करोगे, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ earthworks and all items, right? कितना स्लोप रूल क्या होता है, राइट, और कितना आप एक्सकवेशन जब आप कर रहे होते हो, ठीक है, फुटिंग के लिए, तब कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो भी हैं, ओके, इन सब का डिस्कशन करेंगे इन द सर्वे एंड लेआउट, ओके। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वांटिटी एस्टिमेशन, एंड फॉर क्वांटिटी एस्टिमेशन we'll be covering okay, these are going to be our drawings, ये हमारी drawings हैं, तो complete case study हम cover करने वाले हैं, so we'll be using these drawings, and this is a center line layout plan, okay, these are the details for the foundations and all everything. So these all drawings are important, we'll learn like how to read the drawings को किस तरीके से पढ़ना है ना, उसके बाद इन ड्राइंग से एस्टिमेशन किस तरीके से करना है। यू हैव ग्राउंड प्लान, प्लिंथ फिलिंग प्लान, ओके, सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है, स्लैब प्लान है, राइट, देन यू हैव डिटेल्स फॉर टाइल्स एंड फ्लोरिंग, अदर थिंग्स,
right? So after reading आपको ये drawings मिलती हैं at the initial stage of the project and you are responsible for doing the quantity estimation, right? How you prepare this kind of BOQ? Right? So ये BOQ है, ये BOQ है bill of quantity, which is an important document in the tendering stage. एक important document है जो डिफाइन करता है किसी भी प्रोजेक्ट के स्कोप को, एंटायर स्कोप को, है ना? अगर आपको एंटायर स्कोप जानना है किसी प्रोजेक्ट का, देन यू मस्ट शुड हैव द डिटेल BOQ, राइट? उस BOQ से आपको पता चलेगा व्हाट हैपेंस इन BOQ। ये जो क्वांटिटीज आप एस्टिमेट करते हो ड्राइंग से, वो यहाँ पर लिखी होती हैं। ये रेट से फॉल्ट रेट्स यहाँ पर लिए गए हैं अभी फिलहाल के लिए, दीज आर टेकन फ्रॉम SOR, शेड्यूल ऑफ रेट। ओके, हर एक PWD स्टेट PWD का, राइट, और जो CPWD है उनका SOR डॉक्यूमेंट होता है, वहां से रेट्स उठाए गए हैं, बट दिस डज नॉट हैपेंस इन रियल, राइट? These BOQ are being prepared and they are floated into the market so that other contractor can fill out the rates here. और जो अदर कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो अपने रेट्स यहाँ पर कोट करेंगे एंड देन द एवोल्यूशन टेक्स प्लेस, और वहां पर जाकर के क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, if you are if you are eligible according to the criteria which has been given over there financially or technically, आप अगर sound करते हो, then the contract will be awarded to you and whatever the rates you have quoted at that point of time, right, उस रेट में आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो अभी समझने के लिए ये क्वांटिटी है, ये रेट्स है, इस तरीके से टोटल अमाउंट निकल के आता है, जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स होगा उसके लिए, एंड फाइनली दिस इज द total estimated cost of this entire project comes out, right? So this is a sheet which is called as BOQ। ये estimation sheet है, एक एक चीज को, है ना, साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग and all these things, right? You'll be getting each and everything, Vinayak, don't worry, each and everything means like all the study material which is being shared, चाहे वो Excel हो, चाहे PPT हो, या कुछ भी अदर चीज मैं शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आपको मिलेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप एक कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रोसेस होती है, साइट क्लीनिंग होती है, एक्सकवेशन होता है, सैंड फिलिंग, PCC, फुटिंग कंक्रीट, है ना, फुटिंग शटरिंग, ओके, एंड देन रेशियल के लिए आप कैलकुलेशन करते हो, बैक फिलिंग होती है, सिंगल लाइन ब्रिक वर्क होता है, ग्राउंड बीम की कैलकुलेशन होगी, कंक्रीट की, शटरिंग की, राइट? ईच एंड एवरी डिटेल अगर आप यहाँ पे नीचे जाते जाओगे, सारी डिटेल जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस काम करती है उन सब का एस्टिमेशन हो रखा है डिटेल में। अब ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है ये जाती है BOQ में। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। तो सबसे पहले ड्राइंग्स की हेल्प से आपको पढ़ोगे अब उन ड्राइंग्स को, उन ड्राइंग्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये एस्टिमेशन शीट बनाओगे, एस्टिमेशन करोगे डिटेल में, और यहाँ से क्वांटिटी पिक करके इस BOQ में लेकर के जाओगे। So this is the process how the things work. Clear to everyone? Okay. What is the deduction rule? अब estimation करना is easy, right? Estimation is quite easy, right? Yeah, well, I'll explain just. Dilip, whatever the queries, I'm just noting down. Okay, if you just want to understand sand filling, I'll just explain in a minute, right? The thing is, estimation is easy. If you'll see the sheet, क्या किया गया है? You have length, width, height, right? You have find out the volume, right? You have length and width. You have find out the area. Okay. So जो भी आपको निकालना है, most of the time you will be dealing with the area and the volume of the things, right? It's a basic mathematics. But एक important part क्या आता है कि जब आप estimation कर रहे होते हो या आप जब billing कर रहे होते हो, so as an engineer, difference कहाँ पे create होता है? Difference create होता है कि आपको IS कोड 1200 मोड ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से बिलिंग करनी है, एस्टिमेशन करना है, राइट? सो दिस इज अ मेजर पार्ट व्हिच कम्स इनटू अ रोल, राइट? दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द IS कोड 1200, राइट? ये जितने भी कोड आप देख रहे हो, IS कोड 1200 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 12, प्लास्टर वर्क, कंक्रीट वर्क, राइट, ब्रिक वर्क, एवरीथिंग, पेंट, प्लास्टर, इन सब के लिए। So these are the codes, right, which define some important parameters, or you can say the important rules, right? जब जैसे आप प्लास्टर करते हो, प्लास्टर के लिए डिडक्शन रूल होता है, which is a very important question for the interviews as well, right? PCC के ऊपर क्या प्रोवाइड करते हैं उस वो भी आप लिखो, फिर उसके बाद I'll just take your questions, okay? Now, when you do the plaster, right, तब आपको कुछ डिडक्शन रूल फॉलो करने होते हैं, है ना? उसके हिसाब से क्वांटिटीज का एस्टिमेशन होता है या क्वांटिटीज कैलकुलेट होती हैं। सो an easy approach is what? As a quantity surveyor, most of the time you will be dealing with the area and the volume.
बट IS कोड को जानने की बात आती है, IS कोड 1200 के हिसाब से एस्टिमेशन करना आना चाहिए, क्योंकि वहां पर कुछ रूल्स कंडीशंस हैं जो एज एन क्वांटिटी सर्वेयर और एज अ बिलिंग इंजीनियर यू मस्ट शुड नो, है ना, क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से बिलिंग होगी, उसके हिसाब से एस्टिमेशन होगा, उसके हिसाब से चीजों का डिडक्शन होगा, राइट? ओके, सो दिस all estimation will be doing in reference to the IS code 1200, right? So there are different parts. हम एक एक पार्ट को कवर करेंगे। जब हम कंक्रीट की क्वांटिटी एस्टिमेट कर रहे होंगे तो कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, जब हम प्लास्टर की क्वांटिटी एस्टिमेट कर रहे होंगे तो हम प्लास्टर के बारे में पढ़ेंगे, एंड सो ऑन, राइट? नाउ another thing linked to this is, if you will see on this estimation sheet, right, हमने कंक्रीट कैलकुलेट की है, हमने शटरिंग कैलकुलेट की है, why we haven't considered, right, why we haven't considered reinforcement? हमने रेनफोर्समेंट यहाँ पर क्यों नहीं कंसीडर किया? और दूसरी चीज, अगर रेनफोर्समेंट कंसीडर नहीं किया तो if I'll say, like, for a beam, let's take an example of a beam. Okay, this is how the cross section looks like. So if I am calculating the total quantity of a beam, okay, do I need to subtract these reinforcement part? जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा कि कितनी कंक्रीट लगी होगी, तो यहाँ पे तो कंक्रीट नहीं लगी है, यहाँ पर तो रेनफोर्समेंट लगा है। तो व्हाट शुड बी माय अप्रोच टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ अ कंक्रीट? क्या मैं इसका डिडक्शन करूंगा, इस रेनफोर्समेंट पार्ट का? गिव मी एन आंसर। ओके, सो दिलीप हैज गिवन द करेक्ट आंसर, राइट? जिसने भी नो बोला है, he has given the correct answer. You will not deduct the volume covered by reinforcement. Is this clear to everyone? Yes, करेक्ट। अभी यहाँ पर जो आंसर आया आपके पास वो भी सही है। इसके पहले दिलीप ने नो बोला था, एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द IS कोड 1200, वॉल्यूम ऑफ द रेनफोर्समेंट इज नॉट डिडक्टेड। यू विल नॉट कंसीडर दिस, ओके? इसको इग्नोर कर देते हैं। जब आप क्वांटिटी इसकी निकाल रहे होगे, तो जो इसकी लेंथ होगी, जो इसकी डेप्थ होगी, सॉरी, दिस इज एन लेंथ एंड दिस इज एन डेप्थ एंड दिस इज एन विड्थ, तो जो ये 3 डायमेंशन होंगे, सिर्फ इन 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई करके जो ओवरऑल वॉल्यूम आएगा, राइट, that will define the quantity of concrete for this particular beam. Make sense to everyone? Okay, so ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये तब पता चलेंगी जब आप कैलकुलेशन के अलावा एक अलग नजरिए से देखोगे क्वांटिटी एस्टिमेशन को, और जब आप सीखोगे, राइट? सो यू नीड टू नो ऑल दोज बेसिक रूल्स which are given into the IS code 1200. उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आना चाहिए। ओके, just similarly, one more question, okay, and we'll also be covering that. Okay, when you are जब आप एक पिट खोदते हो, है ना, फुटिंग बनाने के लिए, okay, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया मेरा। So now let's suppose this is an footing, size is 1500 cross 1500. Okay, now जो आपका पिट होगा, और मान लेते हैं जो टोटल डेप्थ है वो 2 मीटर की है, ठीक है? अब मान लेते हैं, सॉरी 2 मीटर, हाँ सपोज कर लो 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे ही कुछ है। सो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द पिट which you will excavate? Is it going to be equals to 1500 or less than 1500 or more than 1500? Equal, less or more? More than 1500. What's the reason? What's the reason why we should? Okay, someone has said 100 mm. So Shri Prasad said PCC. PCC का कोई कनेक्शन नहीं है सर उससे। So people who are saying more, that's correct, right? And the reason is what? You should know the reasons behind each and everything, है ना? क्वांटिटी एस्टिमेशन करते हो या बार बेंडिंग शेड्यूल करते हो, आपको रीजंस पता होने चाहिए कि क्यों, राइट? एक तो आप अगर यहाँ पर इसको एकदम सटा दोगे, चिपका दोगे, इसका मतलब है फिर शटरिंग कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पर जब कंक्रीटिंग करनी है आपको, तो राइट, वर्कमैनशिप डिस्टर्ब होती है, लेबर कहाँ पे जाकर के बैठ के क्या काम करेगा, नहीं कर पाएगा, है ना? सो दीज आर सम रीजंस व्हाई यहाँ पर स्पेस छोड़ना पड़ता है। यू विल गिव सम सर्टेन स्पेस, है ना? और वो स्पेस कितना होता है ये थोड़ी देर बाद बात करेंगे।
है ना, कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही होगी सबको? सबको नहीं आ रही क्लियर? एक बार हम ओवरगो कर रहे हैं, लाइक व्हाट आर द टॉपिक्स, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच विल बी कवरिंग, एंड देन वी विल टेक सम स्मॉल टॉपिक्स जिससे आपको समझ करा कैसे जाता है ना। उसके बाद आज जो मैं शॉर्टकट टेम्पलेट्स की बात कर रहा था, राइट, तो दीज आर लाइक शॉर्टकट टेम्पलेट्स। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेयर केस के एस्टिमेशन के लिए एक शॉर्टकट टेम्पलेट्स बनी हुई है। नाउ along with this course you'll be getting benefit what कि आप estimation कर रहे हो, आप estimation board या copy में नहीं कर रहे हो, you are doing the estimation in Excel. So people who are not aware of like how to work on Excel, you'll be getting an hands-on practice on Excel as well. तो आपको पता चलेगा कि यार Excel का किस तरीके से यूज करना है, how to use Excel, किस एक्सटेंट तक हम Excel में यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर शॉर्टकट टेम्पलेट बनी हुई है कि बार बार अगर आपको सेम चीजों का क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है या कुछ भी करना है, यू डोंट नीड टू पुट ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, यू जस्ट फिल डाउन दीज इनपुट वैल्यूज और ये ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट निकाल के दे देगा कि इस टेयर में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ड्राइंग से निकालनी है, इनकी वैल्यूज डायमेंशंस रख देने हैं और ये खुद ब खुद ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि इतना टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लगेगा इस स्टेयर केस को बनाने में, राइट। सो दीज आर सम शॉर्टकट टेम्पलेट्स जो कवर कर रहे होंगे in the course, right? And after this क्वांटिटी एस्टिमेशन करने के बाद क्या, क्वांटिटी एस्टिमेशन के बाद हमको क्या समझना है, रेट एनालिसिस, राइट। रेट एनालिसिस किस तरीके से किया जाएगा, फॉर दैट देयर इज अ डॉक्यूमेंट DAR. I'll also share the labor productivity labor calculation sheet जिससे आपको easy होगा. This is a DAR document, older version है 2019 का. You can get the latest copy of this by Google. आप Google में आपको जा करके टाइप करना है, you'll get the latest copy. अब जो लोग हाईवे वाले हैं, अगर हाईवे बेसिकली हाईवे इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड हियर, बिल्डिंग की बात करेंगे हम, तो हाईवे में अगर आपको इसी तरीके से चाहिए DAR तो यू कैन सर्च इट फॉर हाईवे एज वेल. ये जो है ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए. तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक टाइप ऑफ वर्क के लिए, राइट, आपको रेट एनालिसिस किया हुआ है नीचे. ये देखो, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ओके, you should know about these coefficients. These are called as labor coefficients, है ना. These are called as labor coefficients. Okay, these labor coefficients helps you to calculate the total quantity of labor required. Okay, टोटल कितनी लेबर की क्वांटिटी चाहिए होगी उसके बारे में आपको हेल्प करते हैं वो चीज एस्टिमेट करने के लिए. लेट्स से यू आर डूइंग अ रेट एनालिसिस. Tell me like what are the important things to be considered while doing a rate analysis? क्या important factors हैं जो आपको rate analysis करने टाइम ध्यान रखने चाहिए. अब अगर आपको कोई बोलता है कि यार रेट एनालिसिस करना आपको मैं सिखा दूंगा, तो रेट एनालिसिस कम्स विद एन एक्सपीरियंस, एंड रेट एनालिसिस का कोई एक वे पर्टिकुलर एक वे नहीं परफॉर्म, एक पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं है कि आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे और रेट एनालिसिस हो जाएगा. बिकॉज आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस है, अगर सबका रेट एनालिसिस आप निकलवाओगे, you'll make 10 people to sit down and do the rate analysis for any kind of work, answers will be 10, answer will be different for all those 10 people, believe me, right. अगर ऐसा होता तो सबको ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, है ना. कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही को अवार्ड होता है ना. तो रेट एनालिसिस भी अगर आप किसी से करवाते हो तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग आंसर आएगा. ईच एंड एवरी पीपल विल हैव देयर ओन आंसर्स, राइट, डिफरेंट आंसर्स बेसिकली. So you must should have a clarity on like what to be considered and what not to be, right? And then the second part comes on कि हाँ कितना परसेंट क्या लेना है ना, लेबर की क्वांटिटी कहाँ से निकली, क्या लेने. So just give me an parameters like what are the parameters you should, and this is how we'll be doing the rate analysis for paint, whitewash, putty, for tiles work, right, for brick work. These are all the things which we generally consider, right, for the brick work, right, for the plaster, for the concrete, right. So these are all the topics like inside the rate analysis, and how to calculate the total number of labor required and all. So labor coefficients is an important thing. Okay, give me an answer, guys. No one? I'm saying like what are the different factors which you should consider, or like what are the different things you should consider while doing a rate analysis. Like let me give an example. आप लेबर कंसीडर करोगे, मटेरियल कंसीडर करोगे, उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं
कौन से उनसे कंपोनेंट है जो रेट एनालिसिस, lead and lift is another thing, right? That's another part. Labor T charges, लेबर टी चार्जेस ऐसा तो कुछ नहीं कैलकुलेट किया जाता है जब आप किसी बीओक्यू को फिल करने के लिए. So these are all like the basic things which are जो लोग आप लोग कैलकुलेट करा रहे हो. These are like you can say like overhead expenses, सीधा सीधा, right? आप overhead expenses बोल सकते हो. अब ऐसा तो कॉपी पेन पेपर का भी खर्चा आएगा, है ना, काम कर रहे हो अगर किसी क्लाइंट के लिए तो. So these all comes under the overhead expenses, है ना. तो जब आप कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड एक्सपेंसेस की बात करते हो तो उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है. अदर देन दैट आपका लेबर हो गया, लेबर चार्जेस हो गया, मटेरियल कॉस्ट, राइट, वेस्टेज, राइट, मटेरियल, ओके ओके ओके, क्वाइट गुड, राइट, क्वाइट गुड. कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, राइट, ओवरहेड एक्सपेंसेस, वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, राइट. ये सारी चीजें हैं जो आप जनरली कंसीडर करते हो. वेस्टेज हो गया आपका, है ना, या कोई अदर आपका मशीनरीज लग रही है, उस मशीनरीज का चार्जेस होगा, राइट. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच कम्स अंडर द रेट एनालिसिस पार्ट, है ना. अगर इसके अलावा कोई अदर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई अदर टाइप का वर्क है और उसमें कोई और भी चीज आनी है, देन यू विल कंसीडर दैट टू. Like few things which you should be considering while doing the rate analysis. Yeah, water and electricity I told. Okay. Okay. And after that, the part which comes up is billing. Sorry, bar bending schedule. Bar bending schedule. We'll be doing a complete case study on the bar bending schedule as well. है ना, bar bending schedule में भी हम सारी चीजें देख रहे होंगे. Okay. So these are like all the drawings जो हमने एस्टिमेशन किया, है ना, जो हमने एस्टिमेशन किया वो ड्राइंग्स तो रहेंगी. उसके अलावा ये जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स आपको दिख रही हैं, ये सारी रेनफोर्समेंट डिटेल्स होंगी और इससे आप बार कर रहोगे. तो ऐसा आपने एक्सेल शीट बनाया था क्वांटिटी एस्टिमेशन करने के लिए, वैसा ही एक्सेल शीट बनाओगे बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए भी. अब यहाँ पर डिटेल में बीबीएस का कैलकुलेशन होगा फॉर फुटिंग, फॉर कॉलम, फॉर बीम, सॉरी, एंड फॉर द स्लैब्स एंड ऑल, राइट. तो इस तरीके से बीबीएस का कैलकुलेशन होगा बार बेंडिंग शेड्यूल का. ओके, दिस पार्ट ओनली. और यहाँ पर भी हम शॉर्टकट टेम्पलेट्स बना रहे होंगे कि लेट्स सपोज हमें स्टीरअप का कैलकुलेशन करना है, वी डोंट नीड टू गो अगेन एंड अगेन एंड डूइंग द थिंग्स, है ना. सिर्फ एक एक्सेल शीट बनाई, वहां पर अगर मेरे पास 4 लेग स्टीरअप है, उसका शॉर्टकट टेम्पलेट बना हुआ है, मैं गया, मैंने लेंथ डाली, विड्थ डाली, डायमेंशंस डाले और मेरे पास सीधा सीधा कैलकुलेशन निकल के आ गया, कटिंग लेंथ निकल के आ गई. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन बार बेंडिंग शेड्यूल, है ना. अगर मैं बोलता हूँ कि आपको यूनिट वेट का फॉर्मूला पता है या नहीं है, who knows the formula for unit weight, tell me. सबको आता होगा, but I just want to hear. Okay, so in the bar bending schedule part, right, d square upon 162, this is the formula, right, this is the overall derivations and all. We'll be learning कि bar bending schedule calculate करना सिर्फ नहीं, like you should have a knowledge about the loads, क्या loads हैं, if you are providing a top extra or maybe the bottom extra, then what is the importance of that, क्यों कर रहे हैं, right. So in that sense we will be learning the bar bending schedule कि हमारे पास क्यों भी आंसर होना चाहिए. मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, ऑल्दो यू आर नॉट एन स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बट यू शुड नो लाइक व्हाट इज ओवर रेनफोर्समेंट, अंडर रेनफोर्समेंट, व्हाई वी शुड प्रोवाइड टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा, अगर यहाँ पर क्रैंक होता है तो क्यों होता है, क्यों देते हैं क्रैंक बार एंड ऑल एवरीथिंग. सो इन दैट सिनेरियो विल बी लर्निंग फॉर द फुटिंग्स, for the pile foundation, for the different types of stirrups, for the columns, for the beams, different scenarios of beams, right, slabs, right, chairs, staircase, right. So these part and chhajja and all, so ye sare parts will be covering, while studying about the bar bending schedule. And bar bending schedule करने के साथ साथ हम एक्सेल शीट भी मेंटेन करेंगे जैसे कि हमने की थी, है ना, जैसा कि क्वांटिटी एस्टिमेशन में किया, सेम उसी तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल में भी एक्सेल मेंटेन करेंगे. एंड यू विल आल्सो बी प्रोवाइडेड अ कंप्लीट नोट फॉर क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड वीबीएस, राइट. क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए इस तरीके से पूरा एक बेसिक नोट्स होगा जो जिसमें बेसिक चीजें भी होंगी, लाइक दीज आर बेसिक थिंग्स लाइक क्लियर कवर कितने होते हैं, मिक्स डिजाइन रेशियो,
क्या होता है, राइट, होमवर्क कितने दिन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक कंप्लीट प्रोसेस, राइट, ऐसा होता है, राइट, डीआर क्या होता है, किस चीज का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, तो कितना करना चाहिए बेसिकली। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया था सैंड फिलिंग के बारे में, सो सी सैंड फिलिंग इज प्रोवाइडेड जस्ट एज अ स्टार्टिंग आफ्टर द एक्सकवेशन, इट हैव फॉलोइंग बेनिफिट्स, सो दीज आर लाइक द बेनिफिट्स टू अवॉइड वाइब्रेशन, राइट, और एंटी 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 टर्माइट, ठीक है, और इस कारण से वी जस्ट प्रोवाइड द सैंड फिलिंग एंड दिस इज द थिकनेस 4 से 8 इंच, है ना। तो अबाउट द पीसीसी, तो ये सारी डिटेल्स आपको इस फाइल में देखने को मिल जाएगी फॉर एन इंटरव्यू प्रिपरेशन, ओके। एंड आफ्टर दैट we'll be moving for the billing part, right, which is also quite important, right. We'll be learning about, you know, how to provide, how to prepare a DPR, वो भी सीखेंगे किस तरीके से एक डिटेल DPR आप बना सकते हैं। लेबर प्राइस एस्केलेशन बेसिकली क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे प्राइस एस्केलेशन होता है, चेंज ऑर्डर क्या होता है, कब किस किस कंडीशन में होगा, सब्स्टिट्यूट आइटम क्या होते हैं, एक्स्ट्रा आइटम क्या होते हैं, राइट, सिक्योर एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस, ओके, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं जो, ये सारी चीजें, टाइप्स ऑफ बिल, right, so these all things will be learning in the billing classes। and reconciliation क्या होता है, material reconciliation क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है ना, सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट्स किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या चीजें ऐड होती हैं उसमें, कैसे सारी चीजें, कैसे एक आर बिल पूरा फ्लो होता है, राइट, कैसे पूरी प्रोसेस होती है, मोबिलाइजेशन रिकवरी जो आप सुनते हो, मोबिलाइजेशन रिकवरी की किस तरीके से आती है, कैसे कैलकुलेशन होता है, टेंडर में जो क्लॉज लिखी होती है उसके हिसाब से किस तरीके से हम जानते हैं। Now, what is the need of knowing कि like mobilization recovery कितनी होगी, इस चीज को जानना क्यों जरूरी है? Anyone? You can post your answer. What is mobilization advance if you have heard about this, and why, like, you know, why it is important to know कि कितना mobilization recovery होने के बाद पैसा हमको मिलने वाला है आरए बिल से, उसके बारे में पता होना क्यों जरूरी है हमको। If anybody wants to say something on that, yes, you will be provided a certification. Duration of the course will be 1 month. Drawings and each and everything will be provided if you'll join the course. Okay, Vinay. Labors for the starting project, that's another thing. Mobilization का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, if you have been awarded a contract, then the client will say, okay, we are giving you this particular amount, let's suppose 10% of the overall cost of the contract, ये 10% पैसा लो, है ना, और आप मोबिलाइज करो साइट पे, जस्ट पुट डाउन योर लेबर्स, पुट डाउन योर मशीनरीज, अगर वहां जाकर के कोई प्लांट लगाना है आपको, प्लांट लगाओ, है ना, ताकि आप काम स्टार्ट कर पाओ। और जब आप मोबिलाइज कर जाओगे तब आपको वर्क ऑर्डर इशू होगा, राइट। तो मोबिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन, बट इट ऑल्सो हैव सर्टेन क्लॉजेस और सर्टेन रूल्स रिटन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कॉपी कि मोबिलाइजेशन एडवांस जो आपको मिला है 10%, उसकी रिकवरी किस तरीके से होगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देयर इज एन स्टेटमेंट, रिकवरी शैल स्टार्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द वर्क डन in RA bills onward shall be fully recovered on completion of 80% of the work done of the contract. That means what? कि भाई जो भी मैं तुम्हें 10% पैसा दे रहा हूँ, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है अगर, और 10% उसका क्या हुआ, 1 करोड़, राइट, राइट, और 1 करोड़ अगर हुआ, राइट, तो वो 1 करोड़ रुपए कैसे रिकवर होगा, जब आप 20% काम कर लोगे, 20% तक काम के लिए जो भी आरए बिल्स आप रेस करोगे उससे कोई भी पैसा डायरेक्ट नहीं होगा। बट जैसे ही 20% काम प्रोजेक्ट का पूरा होता है, उस वैल्यू तक पहुंचता है, तो 20 से 80% के बीच में पूरी रिकवरी भी खत्म कर देनी है, पूरा 1 करोड़ क्लाइंट वापस ले लेगा आरए बिल से कट करके। एक लेमैन के तरीके से अगर मैं एग्जांपल देना बोलूं, तो मैं बोलता हूं कि अगर आपका 100 रुपए का बिल गया तो वो 10 रुपए काट लेगा और बोलेगा कि 90 रुपए लो, ये 10 रुपए रिकवरी थी। ऐसे 10 करते करते वो फाइनली 100 रुपए रिकवर कर लेगा आपके, जब तक कि 80% कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। ओके, रूपक, यू डोंट नीड टू हैव एनी स्पेसिफिक नॉलेज टू द सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर बेसिक एक्सेल चलाना आता है तो मोर देन इनफ है, अगर वो भी नहीं आता है चलाने आपको, देन यू विल लर्न इन द कोर्स इटसेल्फ, है ना।
So Imran, there's no such standard कि बिल इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा, राइट? फॉर्मेट कंपनी अपना अपना बनाती है ना, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होना है. बट द थिंग इज, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिलिंग में आनी चाहिए. अब मान लो बिल में मैं बोल दूं कि यार टोटल अमाउंट कितना है, वही गायब कर दूं, तो दिस इज नॉट अंडर द फॉर्मेट. ये जरूरी चीजें हैं, तो बिल में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर होनी चाहिए, नॉट इंपॉर्टेंट कि ये स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, राइट? तो हम यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट प्रिपेयर होता है, राइट? और वो चीजें आपकी अलग सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर हो जाती हैं, लाइक people will prepare the bill on the Microsoft Excel or maybe into the Word or like these type of softwares only. कोई heavy software use नहीं होता है billing के लिए, right? Certification will be provided to everyone. Okay, जिन लोगों को नहीं आता है, right, Excel, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, because you'll be learning in during the course itself. आपको Excel पता चल जाएगा, right? तो मोबिलाइजेशन एडवांस जिसका क्वेश्चन था, कि मोबिलाइजेशन एडवांस is an step, right? Candy software is used to finding out the estimation, but बहुत कम इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनीज है जो कैंडी का यूज करती हैं, राइट? So more than 90% or maybe I would say like more than 95% of the companies will be using Excel for their billing, right? तो कैंडी सॉफ्टवेयर अभी बहुत दूर की बात है, राइट? अगर आपको SAP से भी हो सकती है, बट SAP का एक अलग से मॉड्यूल है, राइट? उसके हिसाब से हो सकती है. बट दीज थिंग्स आर लाइक दीज आर, इफ यू हैव, ये चीजें अगर आपके ऑफिस में यूज हो रही हैं, राइट, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीखनी चाहिए. SAP, कैंडी, ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही है, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इनटू द बिजनेस, राइट, तो देखो, आप सॉफ्टवेयर कभी भी सीख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगता है. बिलिंग करनी कैसे है, राइट, बिलिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, वो सीखना ज्यादा जरूरी है. सॉफ्टवेयर तो चला ही लोगे 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, राइट? यू शुड नो अबाउट द कोड्स. कोड्स नहीं जानोगे तो बिलिंग कैसे करोगे, या क्वांटिटी एस्टिमेशन करोगे कैसे? तो software, if these softwares are implemented in your organization, then good. You have to need to know SAP, you have to know Candy. But if not, अभी भी 98% कंपनीज क्या चला रही हैं, एक्सेल में, है ना? तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द एक्सेल, क्योंकि आप ज्यादातर काम उसी में कर रहे हो. XBuild I haven't heard about that, sorry. अगर वो यूज हो रहा होगा तो आपको देखना पड़ेगा. यू कैन चेक आउट ऑन द इंटरनेट कि किस तरीके से उसके रिव्यूज हैं, क्या है, खुद यूज करके देख सकते हो आप डेमो वर्जन. ड्यूरेशन फॉर द कोर्स विल बी 1 month. Okay, so let's do a small part, एक स्मॉल सा कैलकुलेशन करते हैं. It's not a self-paced course. These are live classes, right? You'll have live classes for the course. और recordings आपको मिलेंगी बाद में. They will have a certain time duration, जब तक कि आप उन recordings का access कर पाओगे. Okay? And for the more information, you can connect to the Proteni team. Okay. So I'm skipping the site cleaning part. One more thing I just need to show you guys. Have you all heard about SOR, schedule of rate? Okay. Yeah. So this is schedule of rate document. Okay. ये एक स्टेट पीडब्ल्यूडी का है, ठीक है? आप किसी भी स्टेट पीडब्ल्यूडी का डॉक्यूमेंट गूगल से जा करके डाउनलोड कर सकते हो, या पीडब्ल्यूडी की साइट पे चले जाओगे, वहां पे आपको मिल जाएगा, राइट? सो हियर आर द लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स. लाइक अगर मैं अर्थवर्क की बात कर रहा हूँ, तो अर्थवर्क में कौन कौन सा आइटम्स हैं, डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे पढ़े हुए, वहां पे इनके रेट दिए गए, राइट? अगर आप देखोगे एक्सकवेशन फॉर all types and sizes of foundation, trench and drain, etc., right? What the rates? अगर आप एक्सकवेशन कर रहे हो और वो एक्सकवेशन ऑल टाइप ऑफ सॉइल में है, ठीक है, तो कितना उसका पैसा मिलेगा पर क्यूबिक मीटर. ऑर्डिनरी रॉक में कर रहा हो तो कितना अमाउंट मिलेगा, हार्ड रॉक में कर रहा हो तो कितना पैसा मिलेगा एक्सकवेशन का. एंड दीज आर लाइक सम डिटेल्स गिवन ओवर हियर. अब द क्वेश्चन इज,
डू वी फॉलो द सेम थिंग? क्या हम हमारी जो बिलिंग होती है, लेट्स सपोज कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब आपको बिलिंग होनी है, आपकी बिलिंग होनी है, आपने 1 महीने काम किया, तो क्या सेम यही रेट्स उठा करके इनके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा? यस और नो? आई जस्ट आस्क द क्वेश्चन. ओके. ओके, सो द आंसर इज कि आप जो भी बिलिंग आपकी जो होगी वो हमेशा अप्रूव्ड बीओक्यू से होती है, ना कि इस डॉक्यूमेंट से होगी. दिस डॉक्यूमेंट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, कि आप अगर किसी चीज का रेफरेंस लेना चाहते हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, मान लो आप चाहते हो कि यार शटरिंग किसका लगाने का कितना पैसा मिलता है स्टेट पीडब्ल्यूडी से, तो आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट से रेफर कर सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा. इसी तरीके से रेट एनालिसिस जब आप करते हो तो डीआर डॉक्यूमेंट से एक आइडिया लग जाता है. अगर आपकी बिलिंग की बात करते हैं तो वो जो भी बीओक्यू आपके पास आया था, हाउ द प्रोसेस वर्क, सी क्लाइंट है, क्लाइंट ने चाहे क्लाइंट के पास ड्राइंग, चाहे क्लाइंट ने ड्राइंग प्रिपेयर की, जो सारी चीजें आप करोगे इस कोर्स में वही चीजें बता रहा हूँ. यू हैव रेड आउट द ड्राइंग, यू हैव टेकन आउट द एस्टिमेशन, आपने एस्टिमेशन करने के बाद बीओक्यू बनाया, रेट छोड़ दिए, क्वांटिटीज. अब जब टेंडर जाएगा मार्केट में तो इट विल गो टू मेनी अदर पीपल्स, राइट, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स विल फिल आउट द रेट कि अच्छा मैं इसको इस काम को इतने में करूंगा, इतने में करूंगा, इतने में करूंगा. अब जिसको आपने लास्ट में सिलेक्ट किया, जो पैसा उसने डाला होगा, ठीक है, उसकी बिलिंग उसके हिसाब से होगी. अगर उसने डाल रखा था कि शटरिंग के लिए 80 रुपए लेगा पर स्क्वायर मीटर, सो ऑन समथिंग लाइक दिस, तो उसको उस हिसाब से उसकी बिलिंग होगी. ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस डॉक्यूमेंट का यूज क्या है. दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस. ओके, ऑलराइट, एंड वी डू हैव दिस प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन शीट. ये कहीं और से नहीं आया है, जो आपने डीओ और डॉक्यूमेंट, सॉरी, yes, जो आपने डीओ डॉक्यूमेंट देखा था वहां पर लेबर कोफिशिएंट्स देखे थे. नाउ इफ आई आस्क यू टू एक्सट्रैक्ट ईच एंड एवरी, है ना, और मैं बोलता हूँ कि लेबर निकालो, अब इस काम के लिए कितना लेबर चाहिए होगा, तो वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. दैट्स व्हाई दोस ऑल कोफिशिएंट्स हैव बीन केप्ट आउट हियर, और यहाँ से डायरेक्टली, यू नो, लेट्स सपोज कि आपको मैनुअल एक्सकवेशन करना था, मैनुअल एक्सकवेशन करने की क्वांटिटी नहीं थी, कितने दिन में काम को कंप्लीट करना है, आप ये 2 इन्फॉर्मेशन डालोगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेबर्स निकल के आ जाएगा कितना चाहिए. So this is also an important sheet which will be useful for you all, right? And we'll be sharing this while the course. Okay. Okay. तो अब बात करते हैं what are the steps. Let's suppose कि मुझे कैलकुलेशन करना था. अब मैं एक बार एक्सेल शीट खोल लेता हूँ. Okay. For the site clearing. So when you are doing a quantity estimation, what is important to understand? क्या समझना important है कि इस चीज की एस्टिमेशन करने के लिए पहली बात तो आपको यूनिट देखनी है, ठीक है, व्हाट इज द यूनिट, फिर उसके लिए कौन कौन से डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी. तो साइट क्लीनिंग स्क्वायर मीटर यूनिट दी गई है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एरिया निकालना है, दैट मींस आई नीड लेंथ एंड आई नीड विड्थ, राइट. अगर मेरे पास ये ड्राइंग शीट है, आई विल कैलकुलेट द लेंथ एंड विड्थ. ये मेरे पास सेंटर लाइन है, राइट. अगर मैं ये सारी, इफ आई सी ऑल दीज वैल्यूज, इन सब का सम कर दूं, यहां से कर, ये लेंथ, ये विड्थ, तो मेरे पास एरिया निकल के आ जाएगा, राइट. सो आई विल गेट द एरिया. सो दिस इज द एरिया व्हिच हैज बीन केप्ट आउट हियर. ये इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर लिखी गई है. बट एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 17.8 इज द लेंथ, राइट, एंड 12.5 इज द विड्थ. एंड व्हाट इज दिस +1+1? ये +1+1 किस लिए? एनी आइडिया? तो देखो, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो, राइट, तो आप जहां पर जितना आपका प्लॉट साइज है, मैंने बोल दिया मान लो ये आपका प्लॉट एरिया था, तो सिर्फ इतने में ही थोड़ा साइड क्लीनिंग करते हो, राइट. इससे ज्यादा साइड क्लीनिंग करोगे, यू नीड टू सेट अप द, यू नो, मे बी लाइक लेबर्स के लिए आपको कुछ हटमैन बनाने हो, या उनके बनानी, स्टोर बनाना हो, ठीक है, पार्किंग बनानी हो, या भी डंप करोगे वहां पर, कुछ भी करोगे, सो यू नीड, यू नो, लॉट ऑफ सराउंडिंग एज वेल, राइट. तो इन सब चीजों को करने के लिए जो साइट क्लीनिंग की क्वांटिटी होगी, राइट, दैट विल नॉट बी लिमिटेड टू द एरिया जहां पर आपको मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क करना है. उसके अलावा भी आपको कुछ एरिया ऑक्यूपाई करना पड़ेगा या साइट क्लीनिंग करनी पड़ेगी उसकी,
राइट, एंड दैट इज व्हाट वहां पर एक मीटर एक्स्ट्रा लिखा हुआ था कि अगर आप लेंथ की बात करते हो तो जो एल आया वो आया, बट 1 मीटर एक्स्ट्रा इधर से और 1 मीटर एक्स्ट्रा इधर से। इसी तरीके से विड्थ की अगर आप बात करते हो तो 1 मीटर इधर से और राइट। सो इस तरीके से जा करके वो टोटल क्वांटिटी लिखी हुई थी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्वांटिटी एस्टिमेशन, साइट क्लीनिंग। अब साइट क्लीनिंग ही है यहाँ पर या कुछ और करने की जरूरत है, वो कैसे पता चलेगा कि टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है? अगर आप पेड़ काटते हो तो भी गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। यू नो अबाउट दिस और नॉट? व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वांटिटी एस्टिमेशन पार्ट, तब हम इस बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे कि किस हिसाब से पेड़ को काटने का पैसा मिलता है, कितना मिलता है, एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, बट अब साइट क्लीनिंग में क्या यही करना था? सरफेस ड्रेसिंग क्या होती है, राइट? उसके बारे में कौन कौन से सिनेरियो होते हैं, कब क्या चीज बोलते हो आप उसको, कितनी डेप्थ तक एक्सकवेशन होता है किस केस में, राइट? ये सारी चीजें हम जब इस डिटेल में बात करेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कब वॉल्यूम निकालना है, कब एरिया निकालना है, डिपेंडिंग ऑन द साइट सिचुएशन, राइट? वेजिटेशन देखना पड़ेगा वहां पर कैसा है, राइट? उसके हिसाब से चीजें काम करेंगी। मड एक्सकवेशन करना है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, जहां पर कीचड़ या दलदली जैसा इलाका है, राइट, वहां पर। फिर उसके बाद क्या आता है? एक्सकवेशन। विल बी डूइंग द एक्सकवेशन फॉर फुटिंग। फुटिंग बनानी है आपको, फुटिंग बनानी है तो एक्सकवेशन करना है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि इस टेम्पलेट में when you are doing estimation, you are creating this kind of template, right? What are the different columns you should consider? अगर मैं बात करूं एक्सकवेशन करना है, किसका करना है? फुटिंग जो बनाई है आपने उसका करना है, राइट? अब नंबर ऑफ आइटम्स कहां से आ रहे हैं? दीज आर व्हाट? दीज आर द टोटल फाउंडेशंस। कितने, मतलब आपके जो फुटिंग्स हैं, F1 फुटिंग है 16, F2 फुटिंग है 8, ये कहां से निकल के आ रही है? इस ड्राइंग से। इफ यू सी दीज फुटिंग्स, राइट, कुछ यहाँ पर F1 है, कुछ F2 है, ये नाम लिखे हुए हैं ऊपर, राइट? सो यू हैव टू काउंट देम, कितने F1 है, कितने F, और नीचे यहाँ पर F1 F2 के डायमेंशंस दिए हुए हैं, फुटिंग साइज ये देखो, राइट? तो अब यहाँ पर यू हैव टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स आइटम, एक का निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर, हाउ द टोटल क्वांटिटी इज कमिंग। बट हियर द थिंग इज टू ऑब्जर्व, नंबर्स में कुछ नहीं है, सिंपल है, राइट? हाइट में कुछ नहीं है, सिंपल है। विड्थ में 0.1 ऐड है, यहाँ पे भी 0.1 ऐड है, एंड दैट इज व्हाट जो आपने डिस्कस किया था कि जब आप एक्सकवेशन करते हो तो आपको सिर्फ जो फुटिंग का साइज है, फुटिंग का साइज क्या है यहाँ पर? F1 फुटिंग का 1800 बाई 1800, बट यहाँ पर तो 2000 लिखा हुआ है, मतलब 2 मीटर लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2000, राइट? तो व्हाई दिस इज? बिकॉज वी हैव टेकन 100 एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। अब जरूरी नहीं कि हर बार 100 mm ही लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो फुटिंग है उसकी डेप्थ कितनी, डेप्थ के हिसाब से आपको आप डिसाइड करोगे कितना एक्स्ट्रा स्पेस लीव करना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस कारण से ये 1800 की बजाय क्या हो गया? 2000। तो हमको लेंथ और विड्थ कितनी कंसिडर करनी पड़ी? 2। मेक सेंस? अब इसके बाद आपने सैंड फिलिंग की, तो कितनी कितनी हाइट तक सैंड फिलिंग की है, बस वो चेंज होगा, बाकी सारी चीजें कॉपी पेस्ट लेके आ सकते हो आप यहाँ से, सेम चीजें सारी। तो इससे आपने टाइम भी बचा लिया, राइट? जब आपने एस्टिमेशन किया, यू हैव सेव योर लॉट ऑफ टाइम एज वेल। सैंड फिलिंग के लिए, पीसीसी के लिए, फिर फुटिंग कंक्रीट के लिए करोगे, तो व्हाट इज द concrete of a trapezoidal footing? Tell me, what is the formula for calculating the volume, you can say? क्योंकि कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकलेगी जब आप वॉल्यूम निकालोगे? तो फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? सी, फॉर द रेक्टेंगुलर पार्ट वॉल्यूम इज सिंपल, L multiplied by W multiplied by H, or you can say D. What is for the trapezoidal part? Okay, so V1 and V2 you have written parts, right? For trapezoidal and okay. So see, another approach, if I say like V is equals to V1 plus V2, or I say V rectangular plus V trapezoidal. So rectangular, you know, this is the formula, simple. And for the VT trapezoidal part is what? V by 3 A1 plus A2 plus under root of A1 and A2. This is the simple formula.
And what is D? D is this 2, D2. Trapezoidal part की depth divided by 3, A1 plus A2 plus under root of A1 and A2. And A1 and A2 is what? Let's suppose you are considering A1 to this down portion and A2 to this top portion. You can interchange this. इसको A1 ले लो या इसको A1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, right? क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है अंदर. Okay, so you can consider anything. So this is a formula, right, to calculate the volume. Make sense? This is how you'll calculate the total quantity of concrete for this. Similarly, you'll go ahead and calculate the shuttering portion. Okay, and this is how the things goes on, right? तो बहुत सारी चीजें हैं डिटेल में जो आपको समझनी जरूरी है, and which will be covering on when will be, you know, when you will be the part of the course, I would say, right? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीखेंगे. So basically, why this course has been designed? This course has been designed for the people like who are new to the construction industry, or even if you are in a side position, side engineer की position में आप और आप explore करना चाह रहे हो, quantity estimation में reach करना चाह रहे हो, so like overall learning is there, right? आप start करते हो survey से, layout भी सीखते हो, quantity estimation सीखते हो, bar bending schedule सीखते हो, rate analysis का आप जानते हो कैसे rate analysis करना है, billing भी जानते हो. In this one course, you get an idea about each and everything. So that's how the course has been designed, कि आपको पूरी construction process start to the end देखने को मिले, right? So that you get a lot of learning within one course only. Okay. So this is all about the course content, right? I've told you like क्या क्या cover करेंगे, क्या क्या आप सीखोगे. If you have any other questions related to the things which I have discussed today, you can drop your queries. Okay. How to take out the vehicle required with cost? That means like किस चीज की बात कर रहे हैं आप कि अगर आपने रेट एनालिसिस किया तो उसमें व्हीकल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये चीज इसकी बात कर रहे हो आप इमरान, राइट? तो किस मतलब किस आइटम के लिए, मैं पूछूं किस काम के लिए कर रहा हूँ, लाइक व्हाट इज द वर्क? हाईवे, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी लेयर का मटेरियल जा रहा है, डीबीएम जा रही है, कुछ भी जा रहा है, ठीक है, कितना क्वांटिटी लगेगा, जो भी आपके पास वॉल्यूम है कितना क्वांटिटी लगेगा, फिर एक जो आपकी गाड़ी है उसमें कितना क्वांटिटी जाती है, एंड सिमिलरली कितना आपके राउंड लगेंगे. सिंपल सा कैलकुलेशन है, इट्स नॉट अ टफ थिंग, राइट? तो लगभग उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे. सो दिस इज द टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर द डीबीएम, आई वुड से. ओके, लेट्स सपोज कि आपके पास निकल के आया कि 100 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी चाहिए आपको, है ना, 100 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी चाहिए. अब एक गाड़ी में कितना जाता है उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा इतने गाड़ी का आइटम चाहिए. अभी इतने गाड़ी का आइटम चाहिए तो आना जाना लेके गए आप और व्हीकल वापस लौट के आया एंड सो ऑन, राइट? तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे कितना चाहिए होगा, और फिर जब आप करोगे तो धीरे धीरे आप एक थंब रूल डिजाइन कर लोगे कि अच्छा लगभग इतना आता है. तो यू कैन कंसीडर दैट पार्ट की ओके ओवरऑल कॉस्ट का लगभग 2% पेट्रोल का खर्चा आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 2-3-4% जितना भी आता हो, राइट? तो दैट विल बी द ओवरऑल परसेंटेज, और उसके बाद आप उतना ही किया करोगे. ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन और वी कैन क्लोज द सेशन. Okay, thank you very much guys, thank you everyone for joining the demo session, and I hope like you'll join the course and you'll learn a lot of things. See you during the course. Thank you very much. Good night, goodbye. Thank you, learners, and thank you, expert, for joining for today's session. The session will be concluded now. The link to join the session has already been dropped in the chat box. Kindly register for the course using the link there. So thank you, everyone. I'll be closing the meeting in a few minutes. Till then, everyone, you can fill the forms as per your wish. Thank you, everyone. Hello. Hello. Hello, Rupak sir. Give me your contact number. Yes. Hello, Rupak sir. Yes, sir. Boliye. Sir, give me your contact number, sir.
I'm sorry, sir. We are not allowed to do that. If you want, you can connect through the course. Then we'll provide you the other details. Sir, Rupak sir, unmute yourself. Hello. Sir, good evening, sir. Rupak sir. Yes, sir. Good evening. Sir, send me your contact number, sir. No, I'm not sure. So you can. Hello. If there are no questions regarding the course, then I'll be closing the session now. So, Sir, company, where is it located, sir? Hello. sir, regarding the vacancy in other companies will be provided through another group, but you can be a part of that after becoming a member of ProTree. So for that, you need to enroll in one of the courses. But I can work. But I am interested in site engineer, sir. Yes, sir. Regarding the different posts, site engineer, quality estimation, other different designations are provided there if any opportunity arises. Like if there is any vacancy in any company regarding site engineer or any other post, the opportunities are provided there and you can connect with the company as per the details which are provided. But for that, you need to be a part of ProTrainees team. So you need to enroll in one of the courses so that you can get the details. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, thank you. Are there any other questions? No, sir. Sir, where is the office, sir? Excuse me. Sir, where is the office? Where is the office, sir? As in Where is- what you're asking Where about is the the office? office? For which thing are you asking about the office? Hello. So I'll be closing the session now. Thank you everyone for joining. Good night, everyone.